حاصل ہوا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکوں۔ خوشی اس بات کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غم اس بات کا ہے کہ آج کے دن ہماری بہن ہم سے بچھڑی، اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ہم سے بہتر جگہ پر ہے۔ آج کے اس وقت میں جب ہم دیکھیں، جب سے خدا نے انسان کو بنایا، جدائی اور موت کا خوف انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم کسی سے بات کریں، کسی سے بچھڑنے کی یا جدا ہونے کی، تو ہمارا غم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہم تسلی نہیں پاتے۔ اسی ہی ایمان میں، اسی ہی کردار میں قائم رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی دلیری ہے، ہمیں اس بات کی قوت ملتی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے پیاروں کو دفن کیا، جب مسیح یسوع آئے گا تو وہ پھر سے جی اٹھیں گے۔ آج کا جو حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہے۔ مقدس پولس رسول نے تسالونیکیوں کی کلیسیا کو جب قائم کیا، مسیحی ایمان میں قائم رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی دلیری ہے کہ ایماندار کبھی بھی نہیں مرتا، بلکہ یسوع مسیح کے آنے تک ان کی ریسٹ کا ٹائم ہے، وہ آرام کریں گے ان محنتوں سے جو انہوں نے اس جہان میں کی۔ جب انہوں نے جا کے اس کلیسیا کو ایونجلائز کیا، لوگوں کو خدا کے کلام کے بارے میں بتایا، تو میرے اپنے تھاٹ کے مطابق جب ان کا ایک بزرگ مرا، دوسرا مرا اور تیسرا مرا، تو انہوں نے کیا کیا کہ سوچنا شروع کر دیا، یا یہ بات ان کے اندر آ گئی کہ ہمیں جو خدا کا خادم کلام سنا کے گیا تھا، جو بات بتا کے گیا تھا، اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم یسوع مسیح پر ایمان لاؤ گے تو تم کبھی نہیں مرو گے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا، ایک ایک کر کے ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے عزیز ہم سے بچھڑتے جا رہے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پولس رسول نے یہ خط اس کلیسیا کو لکھا اور انہیں اس امید میں قائم رہنا سکھایا جو میں آج آپ کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ تسالونیکیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا پہلا خط، 4 باب، اس کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ کلام خدا میں مرقوم ہے: اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سوتے ہیں یسوع کے وسیلے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند کو آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے وسیلے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول یہاں ایک بڑی امید کی، بڑی دلیری کی بات بتاتا ہے کلیسیا کو، جہاں آج ہم نے گزرے دنوں اپنی بزرگ ماں کو کھویا، اس سے پیچھے ہم نے اپنے بزرگ باپ کو کھویا، 3 سال پہلے ہم نے اپنی اس بہن کو کھویا جو ہم سے بچھڑ گئی اور اس جہاں میں فانی سے کوچ کر کے وہ خدا کے پاس چلی گئی۔ ہمارے دل میں بڑے وسوسے، بڑے خیال اور نا امیدی اور غم جو ہے وہ ہمیں ڈباتا، اور کبھی کبھار ہم خدا کے کلام سے ہٹ کر اور بہت ساری سوچوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن تسالونیکیوں کے نام لکھا گیا، یہ خط مجھے اور آپ کو آج یہ تسلی دیتا ہے۔ پولس مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ اے بھائیوں، اے بہنوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی مانند کیا کرو، ان کے بارے میں نا امید رہو جیسے دوسرے لوگ۔ جب ہم بات کرتے ہیں خدا کے کلام کی اور یسوع مسیح کی اس امید کو جو میرے اور آپ کے پاس ہے،
जब हम किसी और शख्स से जो इस बात को नहीं जानता या जिसका ईमान खुदा के कलाम पर या यीशु पर नहीं है, जब आप उससे पूछते हैं कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, तो उसके पास ये जवाब होता है कि खुदा जानता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन मैं और आप जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी उम्मीद की वजह क्या है, तो मैं खुदा की कलाम को उठाकर या यीशु मसीह को बयान करके बोलूँगा कि मेरी उम्मीद वो है, मेरा भरोसा वो है, मेरी तसल्ली वो है। इसलिए मैं जानता हूँ कि जब मैं इस बदन को छोड़कर जाऊँगा तो खुदा मुझे कहाँ रखेगा। इस बात को याद रखिए कि खुदा ने इंसान की जिंदगी की हदें और मियादें मुकर्रर कर रखी हैं। जब वो पूरी होती, खुदा क्या कहता है, बनी आदम लौट आ, और इंसान वापस लौट जाता है। मौत इंसान के अपनी पैदा की हुई चीज, खुदा ने मौत को नहीं बनाया। खुदा ने जब बनी आदम को बनाया और उससे भागे आदम ने रखा, उससे कहा कि तू क्या कर, दरख्त में जितने बाग लगाए गए हैं, यहाँ हर दरख्त का फल खाना बासवाए किसी एक के। लेकिन इंसान की ये जिबिल्लत है, इंसान के अंदर ये बात पाई जाती है कि आप उसे जिस काम से मना करेंगे वो उसको जरूर करेगा। इसी तरह आदम ने भी जिस काम से खुदा ने मना किया, उसने वही काम कर दिखाया और उसके गुनाह के वसीले मौत पैदा हुई। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, वो वापस आया इस जहां में इंसानी शक्ल इख्तियार करके, और उसने सलीब पर बलिदान होकर इंसान को वापस खुदा के साथ मिलाया। आज इस हवाले में मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेटर आर के आप सुनिएगा गौर से, जब ABC आप पढ़ते हैं तो उसमें एक लेटर आर। यीशु मसीह के आने पर जो पहला काम होगा वो है रैप्चर या रेजरेक्शन, जी उठना। यीशु मसीह के आने पर हमने पढ़ा हवाले में कि जब यीशु आएगा तो पहले वो जो मसीह में सो गए हैं वो, और बाद में हम जो बाकी जिंदा होंगे हवा में उड़कर इस्तेमाल करेंगे। अब हमने कितना जीना है, मेरी जिंदगी कितनी है, आपकी कितनी है, हम इस बात को नहीं जानते। या यीशु कब आ रहा है, हम इस बात को भी नहीं जानते। लेकिन हमारे पास उम्मीद क्या है कि उस ईमान की दौड़ में दौड़ते हुए हमें कायम रहना है, ताकि हम यीशु के आने पर इस उम्मीद में कायम रहते हुए उसके नाम को जलाल देते चले गए। तो लेटर आर जो पहला है वो है रेजरेक्शन, जी उठना। हमने अभी दूसरे दिनों ईस्टर मनाया। किस लिए मनाया हमने ईस्टर, क्यों मनाते हैं? कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर बलिदान हुआ और मर गया, दफन हुआ, और फिर क्या हुआ, वो जी उठा। तीसरे दिन वो जी उठना, रेजरेक्शन। अगर जब हम बात करते हैं दुनिया में, तो आप किसी शख्स के साथ जाकर बात करते हैं, बिलखसूस यहूदी कल्चर के मुताबिक जो सामरी औरत का जो वाक़या यूहन्ना की इंजील में आप पढ़ते हैं, तो उसे एक सामना था कौम परस्ती का। यहूदी में ये कहते थे कि जब खुदावंद दोबारा आएगा तो सारी दुनिया जी उठेगी, लेकिन सामरी जो है वो क्या होंगे, जी नहीं उठेगी। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही सवाल करते और अपनी जिंदगियों को ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन मैं और आप खुदा पर ईमान रखते हैं, हमारा भरोसा खुदा पर है, इसलिए हमारे पास ये उम्मीद है कि जब यीशु दोबारा आएगा, जब यीशु की दोबारा आमद सानी होगी, तो पहले जो हमारे अजीज जिनको हम अपने हाथों से दफना कर आए हैं, जिन्हें हमने दफनाया है, वो क्या करेंगे, यीशु मसीह के आने पर जी उठेंगे, रेजरेक्शन होगा, दोबारा से वो जिंदा होंगे। और एक बात को याद रखिए कि 2 जिंदगियां हैं और 2 ही अमवात। जो शख्स यीशु मसीह को जान लेता है, उसके पास एक जिंदगी ये है और एक हमेशा की जिंदगी है जिसमें वो कभी नहीं मरेगा। और एक जिंदगी वो है जो गुनाह में गुजारता है, खुदा को नहीं पहचानता, वो क्या करेगा, हमेशा की आग में डाला जाएगा, जहाँ क्या है, रोना और दांतों का खींचना। इसलिए आज हमने अपनी एवेल्युएशन करनी है, अपने एनालिसिस करनी है कि हम कौन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कलाम के मुताबिक जब यीशु मसीह आएगा
तो क्या मैं इस उम्मीद में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि मैं भी जी उठूँगा? आज अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, हम मसीही लोगों से भी जब मैं सवाल करता हूँ कभी नौजवानों से, तो उनसे पूछा जाए कि आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या खुदा ही जान रहा है, हमने को। लेकिन हमारा ईमान हमें इस बात को बताता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमें कैसे ज़िंदगी मिलेगी और हम किस और उस ज़िंदगी को गुजारने वाले होंगे। दूसरा लेटर आर है रैप्चर, हवा में उड़ना और उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करना। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब हम हवा में उड़ेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हवा में उड़ गए, क्या पूरी ज़िंदगी हवा में उड़ते रहेंगे? क्या करेंगे? खुदावंद यीशु मसीह से आप खुदा के कलाम को समझने वाले लोग, इंटेलिजेंट हैं, हवा में नहीं उड़ेंगे। अगला जो लेटर आर है वो है रीयूनियन, खुदा के साथ इंसान का दोबारा से मेल मिलाप। खुदा ने आदम को बाग एदन में, मैंने आपको बताया, उसने रखा, खुदा उसके साथ बातचीत किया करता, लेकिन जब गुनाह उसकी ज़िंदगी में आया, जुदाई हुई, गुनाह की वजह से मौत पैदा हुई और वो फाकत, वो रिश्ता टूट गया। लेकिन यीशु मसीह के दोबारा आ जाने से, जब यीशु इस दुनिया में आया और उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लिया, उसने क्या किया? उस जुदाई की दीवार को डाल दिया। हैकल का पत्ता क्या हुआ? ऊपर से लेकर नीचे तक। क्या था? पहले काहिन साल में एक बार जाकर कौम के गुनाहों की माफ़ी के लिए दुआ करता, लेकिन जब यीशु ने क्या किया? बराज़िबा हो गया, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो वो जुदाई की दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान थी, उसको उसने गिरा दिया। 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। पहली बात रेजरेक्शन, दूसरी रैप्चर और तीसरी रीयूनियन। रीयूनियन के बाद आप मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा 21वां बाब और उसकी 4थी आयत। खुदावंद की हुजूरी में क्या कुछ नहीं होगा, वहाँ लिखा है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आह-नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती है। अब यीशु के साथ या खुदा के साथ जब हमारी रीयूनियन हो गई, वो रिश्ता यीशु के वसीले बहाल हो गया, तो अब आप यहाँ बैठे बैठे थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और ये 4-5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालिए और देखिए कि ज़िंदगी कैसी नसीब और खूबसूरत और जीने का मज़ा देती है। कुछ देर के लिए आंखों को बंद करके अपनी ज़िंदगी को इमेजिन करें कि मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, मौत का मुझे खौफ नहीं है, वो मेरे आंसू पूछ देगा, मेरे तसल्ली देने वाला क्या है? जिंदा है। और आहो नाला और दर्द। इस दुनिया में रहते हुए इंसान जब तक इस बदन में है, वो इन सारी चीज़ों को क्या करता है? फेस करता है, इनका सामना करता है, और वो पूरी ज़िंदगी जब तक इस बदन में ज़िंदगी गुजारता है या जिंदा रहता है, तो उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो गम की हालत में परेशान भी होता है, उसे दुख होता है, तकलीफ होती है, उसे मौत का भी एक डर है, उसे जुदा होने का भी एक खौफ है। लेकिन यीशु के वसीले जब खुदा के साथ हमारी रियूनियन हो गई, यीशु के वसीले हमारा मेल मिलाप खुदा के साथ रिश्ता फिर से बहाल हो गया, तो ये तमाम बातें हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। लूका 22वां बाब जहाँ लिखा है इसी आयत में, फिर लानत ना होगी। मैं वीडियो क्या बना हुआ रहा था? था जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, तो खुदा ने क्या किया? भाग दिया। और वो बरकत जो खुदा ने बनी हुई इंसान के लिए रखी थी, उस नाफरमानी की वजह से, उस गुनाह की वजह से लानत में तब्दील हो गई। खुदा ने पहले कहा सब कुछ तेरे सामने है, खा पी ऐश कर, लेकिन जब गुनाह जिंदगी में आ गया तो फिर काम भी करना पड़ा। मैंने कहा जब तक तेरा कोई पसीना एक नहीं होगा, तू रोटी नहीं खाएगा। और उसको सुधा दी कि तू धरती जाए के साथ बच्चे को जन्म देगी। सुधा के तौर पर ये लानत आ गई बनी हुई इंसान पर, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? लानत अपने ऊपर ले लिया। गुनाह की सजा किसे दी जाती है? उसने गुनाह किया। लेकिन हमारे लिए फजल की बात यह है, खुदा के रहम की बात यह है कि हमारी सजा उसने
खुद उठाई और बात के साथ हमें एक किया। इसलिए हमारी बहन जो आज के दिन हमसे बिछड़ी, गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा की कलाम हमें इस बात की तसल्ली देता है, बल्कि इस उम्मीद में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि जब यीशु आएगा तो वो हमसे पहले यीशु को देखेंगे। देखें कितनी शर्फ की बात है कि पहले वो जो मसीह में सोए हैं वो पहले उसको देखेंगे, और फिर वो कहता है कि हम जो बाकी जिंदा होंगे फिर उसके साथ हम उसकी सरकार को दिखेंगे और फिर खुदा के साथ जो है हम रहेंगे। यूनियन में ईसाया 66वां बाब आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ लिखा है कि देखो खुदा का कहमा आदमी के दरमियान, खुदा क्या करेगा, हमारे दरमियान आएगा। काशवा से जो बातें हमने आपको वो हमारी आंखों के आंसू पूछेगा, ना दुख होगा, ना दर्द होगी, ना मौत होगी, ना आह नाला होगा, पहली चीज़ें जाती रहेंगी। जिसकी वजह से इंसान इन सारी बातों से गुजरता है, तो कह रहा है कि वो सारी चीज़ें उसके आने पर जो है वो चली जाएंगी और इंसान हमेशा की ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारेगा और अबदियत में वो खुदा को, खुदा की हजूरी को, खुदा की ममूरी को इंजॉय करते हुए हमेशा उसकी कोशिश करते रहे। लेकिन ये बरकत सिर्फ एक ईमानदार के लिए है जो उस पर ईमान रखता है। अगर हर शख्स इस बात का इकरार करे तो सबसे पहले इस बात का इकरार करना है कि यीशु मसीह उसका निजात दहिंदा है, वो उसे शख्सी तौर पर जाने, उस पर अपने ईमान का इजहार करे तो ये ज़िंदगी उसके लिए है। अगर वो उसको नहीं जानता, उसको जाने बगैर ज़िंदगी को गुजार देता है या बसर कर देता है, तो वो दूसरी मौत के लिए जो हमेशा की मौत है वो तैयार रहे। लेकिन हमें गम करने की, ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ईमान में कायम रहते हुए हमेशा इस बात में दृढ़ रहना कि हमारे अजीज़ जैसे हम उन्हें तैयार करके छोड़ के आए हैं, जब यीशु आएगा वैसे ही हम उन्हें मिलेंगे। एक सवाल है आपसे कि क्या जब हमारे अजीज़ जी उठेंगे तो हम उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं? पहचान पाएंगे कि नहीं? नहीं? एक उम्मीद की बात ये भी है, जब यीशु जी उठा तो वो शागिर्दों पर जाहिर हुआ, शागिर्दों ने पहचान लिया था ये यीशु है। इस वजह तो उसकी अपनी तरफ नहीं पहचान रहा कि और किस तरह है। फिर देखो कैसी उम्मीद कि अगर पहचानना ही नहीं है, दादी होए मेरी तो जब भी पाले तो दूसरा बंदा आके सलाम लाती, तो कैसी उम्मीद? ये यीशु में पहचान हमारी यही है कि जैसे हमने उन्हें छोड़ा है, वो यही तो कह रहा है कि औरों की मानत गम ना करो, ना उम्मीद ना हो, जब मसीह आएगा वो जीव अपना मैंने सुन अपनाया यीशु आ जाए हम पता ना लगे तो ऐसी उम्मीद हमारे पास नहीं है, बल्कि हम अपने अजीजों से मिलेंगे। वो यही कह रहा है ईसाया 66 में बाब में कि देखो खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है, खुदा हमारे साथ रहने को आ रहा है और हमने खुदा के साथ जिंदगी को बसर करना है। फिर हमारी ज़िंदगी से ये तमाम लानतें जो इंसान ने खुद ही पैदा की, खुदा उन्हें दूर करके हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को दिखाएं, खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने अपने कलाम के वसीला से, अपने नबियों के वसीला से इस कलाम को तहरीर फरमाया और हमारे हाथों में दिया, और हम इससे सीखते और अपने उस ज़ाब्ता हयात को जो हमें खुदावंद यीशु मसीह में मिलती है, इसमें से लेकर अपनी ज़िंदगियों को उसके ईमान के मुताबिक जो हमें उसी से हासिल है, हम अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। मेरी दुआ है कि आप सब इस कलाम में कायम रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें और हमेशा की उस ज़िंदगी को जो खुदा ने हमें बख्शी है उसका दामन कभी ना छोड़ें। उस उम्मीद में, उस तसल्ली में हमेशा कायम रहकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। इस बात को हमेशा याद रखें, जब हमारे प्यारे, हमारे अपने हमसे बिछड़ते हैं, जब यीशु आएगा तो वो हमें वैसे ही मिलेंगे। कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।
हम उनको अपने रूबरू देखते हैं, और जो बाकी हैं जो रह जाएंगे फिर हमको हवा मिलता है। तो सच्चा और जिंदा कुरान लिखा गया तो सच्चा और अपनी बेटी के लिए इसको तूने अपनी बकरे मकरे अपने वादे के मुताबिक खुदा ने अपनी बात बहन की पूजा ये सिर्फ जो मसीह के कारोबार हैं उनके लिए जिनको खुदा का हम बोलते हैं पीटते हैं, क्योंकि जब इंसान इतनी देर बैठा रहता है और हमारे मसीहा ने हमारी खातिर खुदा से असली में निर्गत है कानून पर बात करेंगे जब भी याद करें तो हम अपने लोगों की हमेशा मेहरबान स्वामी बाप की खुदा मेहरबान है, तेरी मोहब्बत अपनी तेरा प्यार इरादा तेरी वफादारी की सर्दी करेगी और तेरा खासा रहम फरमाना है। तू हमेशा भगवान इंसान से मोहब्बत करता और खुदा उसकी फिक्र करता। मैं इस वक्त भी खुदा इस खानदान के साथ व्यक्तिगत तौर पर खुदा तेरे सामने आता इस बात पे इकरार करता हूँ कि तू हमारी जिंदगियों का हकीकी बादशाह और तेरे फैसले हमारे हक में हमेशा भलाई के फैसले इसके सारे घराने के लिए कुछ बचा, तमाम बेटियों के लिए तमाम बहनों के लिए खुदा तेरी पसंद तेरी उस उम्मीद को जो तेरे कलाम से हमें हासिल होती है खुदा खानदान के लिए मांगे खुदा ये घराना ये खानदान हमेशा इस कलाम में कायम रहते हुए अपने ईमान का इजहार करते हुए तेरे नाम को गुजार देने का उनके चलने फिरने से उसमें बैठने से खुदा तेरा नाम को गुजार पाए और लोग इस बात को जाने के लिए लोग तेरे खरीदते हैं और तेरे डर और खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इस वक्त में तमाम बहनों के लिए तमाम बेटियों के लिए तमाम भाइयों के लिए जो तेरे हुजूर में अपने सर की पंख किए हुए हैं खानदानों के लिए तमाम आशीर्वाद के लिए तेरे हुजूर से बरकत और शाम दुआ करते हैं। चाहता हूँ खुदावन कि हमेशा कुछ भी कायम रहकर तेरे नाम को गुजार देना। आज के सारे वक्त में तो हमने तेरे हुजूर में गुजारा, तो हमारा हाथी रहनुमा हुआ, तूने अपने पात्रों को हमें बख्शा कि वो हमें हिकमत और बनाई से ममूल करे और जैसा हमें वाजिब है पूरा वैसे ही हम तेरे दस्त आए तेरी प्रस्तुत करते हुए तेरे नाम को गुजार देने का वसीला बने। इस बात की इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा पात्र हमें तमाम तरह की कमजोरियों से निकालता और अपनी शहरी बचता है। इस बात की तरफ से अदा करते हैं। सबसे खुदावन एतबार के साथ बड़ी बरकत देना इसी वजह से खुदावन की सिखाई हुई कहानी शुरू हुई हमें सिखाया हमारे बाप और आसमान पर है तेरा नाम बात बोले जाए तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान हमारे लोग क्या और समाप्त के कारण हम आपको हमारे
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की फाकी खुशहाली अब से लेकर हमेशा इस घराने के साथ और इस्राएल के साथ होती रहे। खुदा आप नाम की बरकत दे। अब